Hello everyone. I hope you guys are fine at home. So today we'll continue chapter 3, The Little Girl. Kejia's nightmare. But Kejia has a nightmare. She saw a butcher with a knife and a rope. He came near Kejia, but she couldn't move. She screamed and woke up her father. So look, but there was some problem with Kejia. And what was that? That was every night she had a nightmare. And that nightmare was about a butcher. That where she saw a butcher with a knife and a rope in his hand. And that means slowly that butcher will come near to Kejia. Near Kejia. But she could not move. But that is a position where she would not be able to move at all. There is just one thing which she can do, that is to scream and woke up her father. देखो हर रात की तरह आज भी क्या हुआ, उसे एक नाइटमेयर आया, सपना आया और सपने में उसने किसे देखा, सपने में उसने देखा एक बूचर को। तो आज तो उसकी ग्रैंड माँ भी नहीं थी क्योंकि ग्रैंड माँ उसकी मॉम के साथ हॉस्पिटल में थी। तो जो रात में आया तो उस बूचर को देखा कि अपने हाथ में एक नाइफ और एक रोप लिए किसकी तरफ आ रहा है, वो केजिया की तरफ आ रहा था। तो केजिया वैसे कंडीशन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाई। ठीक है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया एंड वोक हर फादर अप, और उसने अपने फादर को जगा दिया। Father came to her bed. He asked her what was the matter. After hearing her, he took Kejia with him. So finally, father came into her room and asked her what was the matter. When she saw that she was badly frightened, then he took her to his room with him. And Kejia's father lay down beside her. Kejia crept close to him. केजिया के फादर जो थे वो उसके बगल में क्या हो गए, सो गए। तो केजिया जो थी उन्हीं के साथ क्या हो गई, केप्ट केजिया क्रेप्ट क्लोज टू हिम एंड ही आस्क्ड केजिया टू रब हर फीट अगेंस्ट हर हिज लेग्स टू गेट देम वार्म। तो देखो जब उनके पापा उसे अपने कमरे में लेकर गए तो फिर वो अपने पापा के पास सोई थी, तो उसके उसके फादर ने उससे क्या कहा, उसके पैर बहुत ठंडे हो रहे थे, तो उसने कहा रब योर फीट अगेंस्ट माई फीट in order to keep it warm. And Kejia felt a funny thing. She thought that father was harder and then grandmother. Then something came to her mind. And what was that? तब उसे लगा कि उनके डैड जो थे वो उनके ग्रैंडमा से ज़्यादा हार्ड थे। But it was a nice hardness. Every day he had to work harder. He got tired to be a Mr. McDonald. Then that was a point where she realized what exactly was the difference between her and Mr. McDonald, whom she used to consider as a good father. That was the time when she realized that means just because her father has to work harder, so that is the reason why as a result वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही थक जाते थे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई ही वॉज नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद केजिया, जिसकी वजह से वो किसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, केजिया के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे। शी हैड टॉर्न अप his writing and she has torn up her his writing. She stayed. Father asked what was the matter. Then she was realizing her mistake, that on that day when she was beaten by her father, it was her fault. That what she did, she tore the pages. So as a result, she was beaten by her father, and that paper was somewhere very important for him. तब उस समय पे केजियो को एक बात रियलाइज़ हुआ कि उस दिन तो उसे ये लग रहा था कि उसके फादर मतलब गॉड जो होते हैं वो फादर को आखिर बनाते क्यों हैं, लेकिन आज उसे एक बात का एहसास हो रहा था कि ये उस दिन उसकी गलती थी। एंड देन शी स्टेड, तो वो हिली। फादर आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर. केजिया टोल्ड हिम that her head was on his heart. She told him
that he had a big heart. It was beating. तब जो केजिया का जो सर था वो वो उसके डैड के हार्ट के पास था एंड सी कैन हियर द हार्ट बीट एंड देन व्हाट शी सेड दैट इवन हर डैड हैज अ बिग हार्ट एंड इट वाज बीटिंग. सो देखो एक बात तो समझ लो, पहले ही एक बात कही गई थी कि किसी भी चीज़ में राय कायम करने से पहले उस चीज़ों के बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि हम लोग जनरल क्या करते हैं लाइफ में, कंक्लूज़न हम लोग बहुत जल्दी निकाल लेते हैं. सिस्टम को मतलब जो सिचुएशन होता है उसको एनालाइज नहीं करते हम. कभी इस बात को समझने की नहीं कोशिश करते हैं कि दैट मीन्स इफ वंस वी आर बीटन बाय आवर फादर और मदर, व्हाई, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट. We would never ever try to understand the reason behind it. Yeah, but one thing in which we are master, that directly will come to a conclusion that just because my mom or dad, if they have beaten me, then they are bad. मतलब हम तुरंत एक कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि अगर उन्होंने हमें पीटा है तो वो गंदे हैं, वो अच्छे नहीं हैं. ठीक है, बट वी नेवर एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड और द सेंटिमेंट बिहाइंड इट. ठीक है, बिकॉज दे आर द क्रिएटर ऑफ आवर फ्यूचर. कहीं ना कहीं से हमारे मॉम डैड ही किस चीज़ के क्रिएटर होते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए. एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट टू सिक्योर आवर फ्यूचर. क्योंकि हमारे मॉम डैड दिन रात मेहनत करते हैं, क्यों? ताकि हमारा एक अच्छा फ्यूचर हो. सो वी मस्ट बी ऑब्लाइज टू हिम, वी मस्ट रिस्पेक्ट हिम. ठीक है ना, एंड वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट. Okay, and even we must cooperate them. Even if they are going through bad time, we must not shout at them. We must cooperate them. We must stand by them. Thank you very much, guys. Take care of yourself. This was the end of your chapter.